Hello everyone, welcome to Arts Education. This is Dr. Vandana Kushwaha. Today I am going to discuss about that is glycolysis. It is also very important topic for all the branches of biology, I think. So in agriculture, biotechnology, as well as the biochemistry and whatever the related to the biology classes, biology subject, it is a very basic pathway and it's very important for the different types of the exams like SRB NET, CSIR and GATE exams, CUT exams. So it's all related to the different types of exams as well as your BSc MSc courses. And so we will discuss here one by one. What is the basis of glycolysis? What is the meaning of glycolysis? So if you'll break the term, I always used to break the term because जैसे ही आप term को break करते हो, किसी word को break करते हो, वहाँ से meaning निकल के आता है. Okay, so glycolysis. If you will break this term glycolysis, then you can see that is glyco and lysis. So glyco word is the originated, basically it is a Greek word. Glycus, which means sweets, means here it is glucose. Okay, and lysis means splitting, simple. So we are going to split the glucose और यहाँ पे क्या बनता है उसका हम fat प्रोडक्ट करने वाले हैं. So glycolysis is also called as glycolysis is also called EMP pathway, that is Embedden-Meyerhoff-Parnass pathway, because it is discovered by Embedden-Meyerhoff-Parnass. So we are going to discuss here one by one what is the point. All points are very important, so you have to see as well as you have to listen carefully. And then after that, after completing our pathway, we will see how many ATPs and NADPs are used as well as consumed, as well as how many we will get at last. Okay, and at last we will see the regulation, how it can be regulated. So glycolysis is the central pathway for the glucose catabolism, in which glucose 6 carbon compound is converted into pyruvate 3 carbon compound through a sequence of the 10 steps. See, ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम इसके बाद देखेंगे स्लाइड्स में, अपकमिंग स्लाइड्स में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे 10 स्टेप्स होते हैं और जो इनिशियल सबस्ट्रेट है आपका वो तो क्या है, ग्लूकोज है, ऑब्वियस सी बात है. और जो प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पे, पायरुवेट. मीन्स अल्टीमेटली वी विल गेट द 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट. और ये जो पाथवे होता है जिसमें 10 रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. So glycolysis take place in the both aerobic or anaerobic organism. You should know that there is lots of the pathways which are, some are working in the aerobic organisms and some are working in the anaerobic organism. See, aerobic का मतलब क्या है, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और anaerobic का मतलब क्या है, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है. बट ये ऐसा पाथवे है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो किसी ऑर्गेनिज्म में या फिर ना हो, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक हो या फिर ना हो, वहाँ पे हर जगह ये पाथवे क्या होता है, प्रेजेंट होता है. Glycolytic sequence of the reactions differs from the one species to the other in mechanism of its regulation, subsequent metabolic fate of pyruvate formed at the end of process. Simple it is saying कि जितने भी आपने रिएक्शन करी है ग्लाइकोलाइसिस में, जो भी आप पढ़ोगे, अल्टीमेट जो आपको फेट मिलेगा, जिसको बोलते हैं किस्मत, जो निकल के आता है रिजल्ट, आउटकम, दैट इज कॉल्ड pyruvate. Okay. In aerobic organisms, glycolysis is prelude to the citric acid cycle, electron transport chain, which together release most of the energy contained in the glucose. ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है, देखो जो अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री की, और ये बायोकेमिस्ट्री का ही बेसिक टॉपिक है, तो यहाँ पे जो पाथवेज होते हैं, चाहे आप ग्लाइकोलाइसिस ले लो, चाहे आप सिट्रिक एसिड साइकिल ले लो, चाहे आप डिफरेंट टाइप पेंटोज फास्फेट पाथवे, सारे के सारे पाथवेज जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि किसी का इंटरमीडिएट जो होता है वो कुछ बना रहा होता है और कोई इंटरमीडिएट जाके किसी और पाथवे में इन्वॉल्व होता है. तो आप एक पाथवे को ऐसा सोचो कि इसके सारे सबस्टेट ये हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट ये हैं और यहीं तक ही सीमित है.
चाहे वो कोई भी पाथवे हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी क्यों ना हो, तो वो कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट आते हैं, फिर दूसरा पाथवे चलाते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जाते हैं, फिर वो दूसरा पाथवे चलाते हैं, और सारी की सारी जो सेल है वो सारा प्रोसेस यही चलते रहता है। एक पाथ पे चलेगा, दूसरे के लिए प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा पाथ पे चलेगा, दूसरे के लिए प्रोडक्ट मिलेगा, तीसरा पाथ पे चलेगा, तीसरे के लिए प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसी जो चीज़ें वो क्या होती है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए चलती रहती हैं, राइट। चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स आपकी रिएक्शंस हो। सो दैट इज यही बोलना चाह रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रिल्यूड टू द सिट्रिक एसिड साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस कराता है। It is also referred to as the Embeden-Meyerhoff-Parnas or EMP pathway in honor of the pioneer workers in the field. Glycolysis occurs in the cell's cytosol. This process occurs in the cytoplasm, or we can say cytosol. Okay. So these are the different enzymes. Glycolysis enzyme in most kinds of the cells, enzymes that catalyze the glycolytic reactions are present in the cytosol, cytoplasm. One common characteristic in all the enzymes involved in the glycolysis is that nearly all of them require Mg+2. See, this magnesium plus 2 ion is very important for the glycolysis enzymes also, and sometimes manganese plus also. It is also important. And zinc. Three elements are there, magnesium and manganese as well as the zinc are very important ions which are acting as the cofactors for the different types of the enzyme. Okay, so these are the list of the enzymes, but आपको इसको रटने नहीं बैठना है। आप ग्लाइकोलाइसिस को 2-3 बार पढ़ोगे, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दीज एंजाइम्स, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स हैं, बस आपको मीनिंग समझना है। कैसे, देखो, हेक्सोकाइनेज है, हेक्स वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है, 6 कार्बन के लिए होता है। और काइनेज किसके लिए होता है, काइनेज और फास्फेटेज, दो एंजाइम ऐसे होते हैं जो आपको माइंड में हमेशा रखने चाहिए। काइनेज वो एंजाइम होता है जो कि कहीं पे फास्फेट ऐड करता है। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, सेल बायो हो चाहे बायोकेमिस्ट्री, कहीं पे भी अगर टर्म दिया हुआ है काइनेज, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो फास्फेट को ऐड कर रहा है, चाहे वो सबस्ट्रेट में ऐड कर रहा हो, चाहे वो प्रोडक्ट में ऐड कर रहा हो, चाहे वो एएमपी में ऐड कर रहा हो, मतलब उसका कहीं ना कोई कुछ ना कुछ फास्फोराइलेशन का रोल है। दैट्स वाई इट इज यूज एज अ काइनेज। फास्फेटेज वो होता है जो काइनेज ने जो काम किया उसको बेकार कर देगा, मतलब काइनेज ने फास्फेट को ऐड किया और फास्फेटेज आएगा उस फास्फेट को रिमूव कर देगा। फास्फेटेज का काम होता है फास्फेट को रिमूव करना। तो ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो आप कहीं पे भी देखोगे, काइनेज है तो फास्फेट को ऐड करेगा, फास्फेटेज है तो काइनेज को मतलब डिस्टर्ब करेगा, मतलब फास्फेट को रिमूव करेगा। दिस आर द 2 मेन पॉइंट्स। फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज, आइसोमेरेज का मतलब क्या है, देखो, आइसोमेरेज का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज ग्लूकोज है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। जब भी कभी आइसोमेरेज की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहता है, मतलब अगर कोई 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ही होंगे उसमें, और अगर उसमें ऑक्सीजन 4 है तो 4 ही होंगे, नाइट्रोजन 2 है तो 2 ही होंगे। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे आती है, ये क्या करता है, आइसोमेरेज का काम होता है कि ये क्या कर रहा है, अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। पहले फास्फेट कहीं और पे ऐड था, अब कहीं और पे ऐड कर देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आइसोमेरेज का काम होता है कोई भी कंपाउंड है उसके अरेंजमेंट में चेंज करना, स्ट्रक्चर में चेंज करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज नहीं करेगा, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा, ओनली एंड ओनली इट विल डिफरेंशिएट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ओके, अगेन इट केम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज फिर से ये क्या करेगा, फास्फेट को ऐड करेगा। एल्डोलेज एंजाइम, जस्ट एल्डोलेज का मतलब क्या है, it is going to produce the aldehyde. Okay, and then phosphotriose isomerase, this again isomerase. डिहाइड्रोजनेज का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। जब भी बात आती है कहीं पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, तो वहां पे हम एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनोज। देखो, डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूव करना, और जब इसमें ये खुद में हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो कोई ना कोई सामने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। दिस इज द मेन वर्क। फास्फोग्लिसरेट काइनेज, फिर से काइनेज आया तो फास्फेट ऐड करेगा। फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज इज द एंजाइम, एंड इनोलेज इज आल्सो एंजाइम। वी विल सी in the upcoming slide what is the role of this, and then again pyruvate kinase. So ये एंजाइम की लिस्ट है, लेकिन आपको इसको रटने नहीं बैठना है, we will see one by one, you can get it. So this is all about, that is
AMP पाथवे जिसको आप बोलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी हियर। सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज। जो सारी कहानी वो ग्लूकोज के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि ग्लूकोज तो सेल में रहे ही रहे, लेकिन ग्लूकोज इतना ज़्यादा ना बन जाए कि हमारे सेल को उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे फॉर्म्स बनेंगे यहाँ पे, और बहुत सारे फॉर्म्स कुछ इंटरमीडिएट होंगे जो किसी और साइकिल में, जो भी इसका फेट होगा वो कहीं और जाके कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। सो वी आर गोइंग टू study it. Glucose is the first substrate. You can see here, this is the phosphorylation reaction. It converts into glucose 6-phosphate, but enzyme is used here, hexokinase, and it is also called glucokinase. Then ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है, समटाइम्स दे आस्क दैट हेक्सोकाइनेज को आप ग्लूकोकाइनेज बोल सकते हैं क्या? यस, वी कैन से. Hexokinase is also called as glucokinase in the some cells of the pancreas as well as the liver. अगर बाकी सेल्स में है तो हेक्सोकाइनेज ही बोलेंगे, लेकिन जब भी बात आती है लिवर सेल्स की एंड पैनक्रियास सेल्स की, तो वहाँ पे इसको ग्लूकोकाइनेज के नाम से जाना जाता है. ओके, सो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, एंड यहाँ पे हम एक एटीपी का कंजप्शन करते हैं. देखो, इसने यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दिया. काइनेज का काम क्या था? सिंपल फॉस्फेट जोड़ना, उसने जोड़ दिया. अब ये फॉस्फेट आया कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ हमको सबस्ट्रेट यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सेल में निकालना पड़ेगा. तो एटीपी है, एटीपी प्रेजेंट रहते हैं सेल में, तो वो क्या करते हैं, अपना फॉस्फेट इनको डोनेट कर देते हैं, और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे जब एडीपी बनता है तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. अब इसके पास 2 फॉस्फेट बचे, राइट. So this is the first reaction, and this reaction is called phosphorylation reaction. Again, here second step, glucose 6-phosphate is going to convert into fructose 6-phosphate. Enzyme, it is used phosphoglucoisomerase. फिर वही बात, आइसोमरेज की बात करेंगे तो इसने क्या, देखो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से इसने बनाया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. आप अगर स्ट्रक्चर में जाएंगे, पहले यहाँ पे फॉस्फेट एडेड था, और अब ये रिंग देखो अरेंजमेंट में क्या चेंज हुआ है कि ये रिंग कैसी बन गई है. पहले 6 कार्बन की थी, आई मीन 6 मेंबर्स की रिंग थी. अब ये जो रिंग है ये 5 मेंबर की रिंग हो गई. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. मीन्स चेंज क्या हुआ है? सिर्फ अरेंजमेंट में चेंज हुआ और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लो अगर रिंग में चेंज नहीं हुआ होता तो ये फॉस्फेट यहाँ से वहाँ हो सकता है. मतलब 1 पे है तो 6 पे हो सकता है, 6 पे तो 3 पे हो सकता है, लेकिन रहेगा तो फॉस्फेट ही, जिससे कि मॉलिक्यूलर वेट में डिस्टर्ब ना हो. इट इज गोइंग टू चेंज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द ring or structure of the compounds. Okay, so it converts into fructose 6-phosphate. After that, fructose 6-phosphate gets converted, and this reaction is called isomerization reaction. Second step is called isomerization reaction. After that, it is going to convert into fructose 1,6-bisphosphate. Again, phosphate is added. So again, we need phosphofructokinase enzyme 1. And it is very important steps, because it is also called committed step. See, committed step का मतलब क्या होता है? अगर आप भी कुछ अपनी लाइफ में कमिटमेंट खुद को करते हैं, किसी को आपने कोई स्टेटमेंट दिया. कमिटेड स्टेप का मतलब क्या है कि अगर आपने बोल दिया कि मैं अगर एक बार ये एग्जाम को निकालूंगा तो निकालूंगा, उसके बाद आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते. जस्ट लाइक अ सेम, जैसे ये वाली रिएक्शंस होती है, मतलब फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बन गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का रोल आ गया, तो अब ये स्टेप कमिटेड स्टेप है. इसके आगे ये साइकिल पीछे नहीं जा सकता है, इसको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, और इसको साइकिल कंप्लीट ही करना पड़ेगा जब तक यहाँ तक रिएक्शंस नहीं थी. मतलब सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में इसका मन करे, अगर लेजीनेस आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाए, रिएक्शंस नहीं चलाएं, सेल्स ग्लाइकोलाइसिस नहीं चले, बट इसके बाद कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे अगर ग्लाइकोलाइसिस यहाँ तक चल गया है तो इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा. दिस इज कमिटेड स्टेप. ओके, so now it gets converted into fructose 1,6-bisphosphate, and that is again it is also called phosphorylation reaction. Then here enzyme, that is fructose 1,6-bisphosphate, converts into 2 compounds. This reaction is called basically cleavage reaction.
और क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, फिर से तोड़ फोड़ मचाना, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज रिएक्शन। सो ये एल्डोलेज क्या करता है? इस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना देता है। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 1 इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं DHAP। ओके, इसने क्या किया? 2 मॉलिक्यूल बना दिया, एंजाइम एल्डोलेज, और रिएक्शन इज कॉल्ड एज द क्लीवेज रिएक्शन। After that, see, here triose phosphate isomerase, again it is going to change into compound. It is not going to, यहाँ पे ये दोनों एंजाइम कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक सिंपल, ये जो पहले वाला कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आइसोमराइजेशन के थ्रू, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 2। देखो यहाँ पे आपके पास फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे कितने, अगर हम बात करें ग्लूकोज में 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे भी 6 है। इसके बाद ये टूट जाता है किसमें? 3 and 3C कंपाउंड में। फिर ये 3C कंपाउंड है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। 3C मतलब 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कंपाउंड बनाया दैट इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे एंजाइम यूज होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, और अगर यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज हो रहा है इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और अगर ये रिमूवल हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब ये रिमूवल हो रहा है तो किसी का तो ऑब्वियस सी बात रिडक्शन हो रहा होगा। ये एंजाइम रिडक्शन करवाता है NAD का। NAD में क्या जोड़ दिया इसने? देखो दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे NADH में इन्होंने जोड़ दिया, ये NAD कन्वर्ट हो गया NADH में, और 2 ये हाइड्रोजन बाहर भी हो गए, राइट। अब जब इसका रिडक्शन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसको रिडक्शन किया गया। किसने करवाया? एंजाइम ने। ठीक है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। देखो ये जो है एल्डिहाइड है, और ये क्या है? 8 वर्ड जो आता है, जैसे आपको होता है 8 वर्ड किसके लिए आता है? एसिड के लिए आता है, राइट। सिट्रिक एसिड के लिए, सिट्रेट जो आप बोलते हो, सिट्रेट सिट्रिक एसिड जैसे आप बोलते हो, तो वो भी किसके लिए आता है? तो यहाँ पे एसिटेट बोलते हो, एसिटिक एसिड के लिए एसिटेट बोलते हो। तो ये 8 वर्ड जो आता है किसके लिए आता है? एसिड के लिए आता है। तो ये कन्वर्ट हो गया एसिड में। जब एल्डिहाइड से एसिड कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, CHO और COOH, राइट। ऑक्सीजन ऐड हो गया और ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसके बाद यहाँ पे 7th स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड, सी यहाँ पे फिर से आपको देखना है कि यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्या हुआ है? NADH का प्रोडक्शन हुआ है, और जब भी प्रोडक्शन होता है NADH का तो वहाँ पे क्या होता है? ATP जनरेट होते हैं, जहाँ के कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और ये क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 NADH से कितना ATP बनता है? 3 ATP। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 ATP बन गया ऑलमोस्ट, बट एक्चुअल में 1 NADH इक्वल टू 2.5 ATP होता है। ठीक है, सो it will convert into 3-phosphoglycerate, 1,3-bisphosphoglycerate convert into 3-phosphoglycerate, और फिर यहाँ पे देखो ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। काइनेज एंजाइम आए, इन्होंने क्या किया? ATP प्रोड्यूस किया, ADP बनवाया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये 1,3-bisphosphoglycerate से 3-phosphoglycerate में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो एंजाइम इज यूज्ड phosphoglycerate kinase. After that it get converted into 2-phosphoglycerate. सिंपली यहाँ पे क्या चल रहा है? स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट चल रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यू कैन सी हियर स्ट्रक्चर, सो यू कैन गेट इट। ओके, अगेन 8th स्टेप, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज आए, और इन्होंने क्या किया? 3-phosphoglycerate से इन्होंने 2-phosphoglycerate का फॉर्मेशन करवा दिया। देन again it will convert into phosphoenol pyruvate. This is the 9th step, and यहाँ पे एक हाइड्रोलिसिस भी हुआ है, और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इनोलेस क्या कराता है? डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल को इसने बाहर निकला दिया, बोला कि तेरी जरूरत नहीं, भी बाहर जाओ, और इसको कन्वर्ट करा दिया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अभी तक 3C ही चल रहा है, मतलब 3 कार्बन ही है, क्योंकि देखो 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, राइट। पायरुवेट काइनेज आए और इन्होंने क्या किया?
एडीपी में से एटीपी बोला कि अब फॉस्फेट की जरूरत नहीं है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया और ये पायरुवेट फाइनली बनवा दिया. वाओ, we got the product pyruvate, whatever we wanted. Okay, so this is all about glycolysis. You can see here 10 steps are there. Yes, now what is the important points? So you have to listen carefully. सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में एटीपी का यूज हुआ है, मतलब वहाँ पे कंजप्शन हुआ है. जहाँ जिस स्टेप में एटीपी का कंजप्शन हुआ है इस स्टेप को हम बोलते हैं एटीपी इन्वेस्टमेंट. जैसे मनी है, ठीक है, आपके पास रुपया है, आप कहीं भी स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, खर्च करते हो, तो वहाँ पे आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है, बाद में बेनिफिट होता है इन्वेस्ट करने के बहुत दिनों बाद, जब आप थोड़े के पास पैसेंस रखते हो, फिर 2-4 साल लाइफ सेंस, जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हो तो कुछ पैसे पहले लगाते हो उसके बाद ही आता है ना, जस्ट लाइक दैट दीज स्टेप्स इज कॉल्ड, मतलब ग्लूकोज से अगर आपने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर कह सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक बनवाया, these all step is called, these phase is called एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज. और ये जो बात का प्रोसेस है इसको बोलते हैं एटीपी अर्निंग फेज. क्यों अर्निंग बोलते हैं? बिकॉज वी आर गेटिंग बेनिफिट, वी आर नॉट गेटिंग, सेल इज गेटिंग बेनिफिट. ओके, सेल में क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे एनएडीएच का प्रोडक्शन हुआ तो कितना हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियस सी बात है कितना? 6 एटीपी. फिर यहाँ पे आपने 2 एटीपी का प्रोडक्शन किया, कितना हुआ? 2 एटीपी. फिर से आपने यहाँ पे 2 एटीपी का प्रोडक्शन किया, कितना हुआ? टोटल एटीपी कितना हुआ? 10 में से आपने 2 कंज्यूम किए, इसका मतलब रिमेनिंग कितना बचा आपके पास? सेल के पास ओनली 8 एटीपी. 3 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और 10 - 2 कितना हुआ? 8. दिस इज ऑल अबाउट एटीपी प्रोडक्शन. मतलब अल्टीमेटली अगर आपको इंटरव्यूज में कहीं पे भी नेट क्वेश्चंस में SRB नेट वगैरह में पूछता है तो आप बता सकते हो कि हमको जो ग्लाइकोलाइसिस में है नेट के ऑफ एटीपी कितना होता है? वहाँ पे 8 एटीपी होता है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक दैट कि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, मतलब कितने एटीपी प्रोड्यूस होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट 7th स्टेप और 10th स्टेप जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ओके, जहाँ पे सबस्ट्रेट के थ्रू क्या करते हैं? एटीपी बनता है. ओके, तो इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पे कितना एटीपी बनेगा? 4 एटीपी अल्टीमेटली, राइट. अगर 1 पायरुवेट एंजाइम के लिए बोले तो कितना होगा? 1 पायरुवेट के लिए बोले तो 2 एटीपी. सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी बनता है? 4 एटीपी. और अगर 1 पायरुवेट के लिए बोलता क्वेश्चन में पूछता है तो 2 एटीपी. दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये भी याद रखनी है, आपने जब रिएक्शंस जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे आपने रिएक्शंस के एरोज देखे होंगे. सी 1, 3 एंड 10, ये जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती हैं. एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी स्टेप. कैसी रिएक्शंस होती है? इरिवर्सिबल होती हैं. बाकी में देखो प्रोडक्ट में क्या होता है? चेंजेस होते रहता है. रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये भी रिवर्सिबल है, इधर से उधर बनता ही रहता है, सेल में इधर से उधर बनता ही रहता है. लेकिन ये अगर ये रिएक्शंस बन जाती हैं तो वहाँ पे रिवर्सिबल की प्रोसेस, रिवर्सिबल की कोई मैकेनिज्म नहीं है, राइट. सो 1, 3, 10 और इरिवर्सिबल रिएक्शंस. आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा. चलो नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सेम प्रोसेस, जस्ट आई हैव गिवन. अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के. 2 एटीपी, 2 NADH एंड 2 पायरुवेट. ओके, मेन पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. फिर भी चलो, energy investment phase, the first step of glycolysis consumes 2 ATP molecules to phosphorylate glucose, its intermediate preparing them for the breakdown. इन्वेस्टमेंट फेज जहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी पे फेज जहाँ पे आपने एनर्जी को अर्निंग किया है. पायरुवेट विल बी प्रोडक्ट, एटीपी विल बी प्रोडक्ट एंड NADH विल बी प्रोडक्ट. ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे, मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय द सेल्स कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज. ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कहीं दौड़ रहे होते हो तो आप क्या करते हो? ग्लूकोन डी लेने की कोशिश करते हो.
इसलिए जब भी देखा होगा एथलेटिक्स है, कहीं पे भी आप कहीं जर्नी पे जा रहे होते हो समर में, तो आप क्या करते हो, इंस्टेंट ग्लूकॉन डी लेके चलते हो, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी देता है ग्लूकोज. So it's very important for the cell. It is first pathway that is used to convert glucose into the energy. Now questions. Okay. Which enzymes catalyze the first step of glycolysis? Phosphofructokinase 1, glucokinase, pyruvate kinase, hexokinase. So right answer will be hexokinase. See, अगर यहाँ पे ऑप्शन में हेक्सोकाइनेज नहीं होता तो हम यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज को मार्क कर सकते थे. और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता कि पैनक्रियास सेल्स या फिर लिवर सेल्स, तो हम डायरेक्टली ग्लूकोकाइनेज को मार्क कर सकते थे. बट ऐसा कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, पैनक्रियास नहीं दिया, लिवर सेल्स नहीं दिया, तो ग्लूकोकाइनेज हम मार्क नहीं करेंगे जब तक कि हेक्सोकाइनेज में ऑप्शन दिया हुआ है. राइट. सो राइट आंसर विल बी हियर हेक्सोकाइनेज. वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द सेल? सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम. सो आंसर विल बी हियर साइटोप्लाज्म. What is the net ATP yield per glucose molecule during anaerobic glycolysis? Anaerobic is the, see, anaerobic we will discuss what is anaerobic basically, but question is came, so we have to mark the answer. Here it is production of the 2 ATP. यहाँ पे देखो, जब ग्लूकोज से जब ये एनारोबिक रिएक्शन होती है तो यहाँ पे इथेनॉल बनता है और वहाँ पे 2 ATP का प्रोडक्शन होता है. ओके. Next question, which glycolytic enzyme catalyzes the committed and rate limiting step converting fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate? Already I told you, that is answer will be phosphofructokinase 1. Which intermediate is split by the aldolase into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate? Fructose 1,6-bisphosphate, glucose 6-phosphate, phosphoenol pyruvate. Answer pyruvate. Right answer will be here fructose 1,6-bisphosphate. What is the journal term for the anaerobic degradation of glucose to obtain energy? Right answer will be here fermentation, glycolysis, oxidation, respiration. So right answer will be here fermentation, जिसमें ग्लूकोज सबस्ट्रेट होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, इथेनॉल होता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड fermentation. Okay. Last question. Which enzyme catalyzes the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate? So answer will be here phosphofructokinase 1, and this was the committed step. Okay. Now regulation of the glycolysis. देखो, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं. हम डिप्रेशन में जाते हैं कभी कभी, जब आपको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा होता है. तो बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, और आप सपोज करो कि आपने बहुत सारे एग्जाम क्रॉस कर लिए. कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपकी तैयारी एक लेवल तक हो जाती है तो आप 3 से 4 एग्जाम क्रॉस कर सकते हो, मतलब सारे एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है. 2 दिन नौकरी आप ऐसे ही छोड़ देते हो, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो आप, और समटाइम्स आप क्या होता है, डिप्रेस्ड हो जाते हो. तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग का काम करता है, कौन करता है? हमारी लाइफ में भी कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं. राइट. जैसे आपके पड़ोसी हैं, वो किसका काम करते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं, और समटाइम्स वो एक्टिवेटर का भी काम करते हैं. कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको वो प्रॉब्लम आप में बता के जाते हैं, या फिर आप बहुत खुश हो आपको दुखी करके जाते हैं. तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल्स एक्टिवेटर्स के और इनहिबिटर्स के. और हमारे घर पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो कुछ समटाइम्स क्या होता है, उनकी बातें आपको एक्टिवेट कर जाते हैं कि यार मैं तो करूँगा कुछ भी हो जाए, मैं तो करूँगी कुछ भी हो जाए. तो ये क्या है, लाइफ में बैलेंसिंग है. और अगर लाइफ में बैलेंसिंग नहीं होगी तो रेगुलेट नहीं होंगी सारी चीज़ें सही से. फिर आप पता चला डिप्रेशन में ही पड़े हो, आप पता चला एक्टिवेट ही, मतलब खुशी के मारे झूम रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, केवल खुशी ही खुशी है. तो ये क्या है, हमारी लाइफ को बैलेंस करता है. सेम यहाँ पे सेल पे भी होता है. सेल पे भी ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, लेकिन कभी तो बंद करना पड़ेगा. चलो बंद नहीं भी करना पड़ा तो कभी तो उसको थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा. पता चला कि पायरुवेट की ज़रूरत ही नहीं है, और पायरुवेट की ज़रूरत नहीं, या फिर जब पायरुवेट की ज़रूरत नहीं तो आप क्यों पायरुवेट बना रहे हो, पायरुवेट बनाया जा रहे हो. सेल को बोलना पड़ेगा ना कि भाई पायरुवेट बनाना बंद करो, अभी सिट्रिक एसिड साइकिल बहुत बिजी है, या फिर सेल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है. तो ये सारी प्रोसेस होती है. तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं. और सबसे मेन प्रॉब्लम कब आती है कि आप जब खुद के ही लाइफ की बैलेंस को आप खुद ही जानते हो. ये बहुत अच्छी चीज़ है. कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो खुद का फीडबैक करते हैं. खुद का फीडबैक मतलब खुद का खुद ही रेगुलेशन कर लेंगे. उनको फील हो जाता है कि हमने ये चीज़ गलत करी है,
या फिर ये टॉक्सिसिटी हो रहा है, या फिर हम ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो ज़्यादा खुश नहीं होना, थोड़ा कम खुश हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 2-3 दिन से आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो किसी किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होता, यार मैं 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ। तो लाइक दैट कि यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को भी पता चल जाता है कि यार ये कंटिन्यूस बने जा रहा है, बने जा रहा है, तो मुझे तो कुछ तो फीडबैक देना होगा। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे 2 टाइप का रेगुलेशन होता है, एक तो होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन और दूसरा होता है हार्मोनल रेगुलेशन। देखो हार्मोनल रेगुलेशन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा रोल है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। इसमें बहुत सारी न्यू न्यू डिफरेंट प्रोसेस भी इन्वॉल्व हैं, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है आपका, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, तो वो डिफरेंट प्रोसेस है। बट वी विल डिस्कस दिस वन, मीन्स एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक वर्ड का मतलब होता है सिंपली क्या करेगा, कोई भी एंजाइम है अगर वो एक्टिवेटर और इनहिबिटर है तो वो जाके साइड पे उसकी बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही उसके साइड पे बाइंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं कर पाएगा। एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो जब भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की बात आती है ये खुद फीडबैक दे देता है। जब जब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो ये टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करता, ये खुद क्या करता है, आपको अपना नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको, ये नेगेटिव फीडबैक ही दे देता है, किसको, ग्लूकोकाइनेस को। जब ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये हेक्सोकाइनेस को नेगेटिव फीडबैक दे देगा। तो जब नेगेटिव फीडबैक मतलब क्या करेगा, इनके साइड से जाके बाइंड हो जाएगा, सिंपल। और जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये एंजाइम काम ही नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, राइट। जब कम हो जाएगा तो फिर से एक्टिवेट करेंगे, फिर। तो ये सारी प्रोसेस कैसी होती है, टू मेंटेन द बैलेंस, एवरीथिंग इज फॉर द मेंटेनिंग द बैलेंस। जब यहाँ पे एडीपी ज्यादा हो, एएमपी ज्यादा हो, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा हो, तो ये पॉजिटिव रेगुलेटर का काम करता है, किसको, फास्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 को। और जब एडीपी ज्यादा हो, सिट्रेट ज्यादा हो, तो ये नेगेटिव रेगुलेटर का काम करता है, और ये इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, मतलब फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फास्फोइनॉल पायरुवेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट फीड फॉरवर्ड किसको देता है, यहाँ पे पायरुवेट काइनेज को। और अगर ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे एटीपी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा। एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा। एलिनिन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक ही देगा। अल्टीमेटली रेगुलेशन कुछ ऐसा ही होता है। ओके, so this is all about regulation of the glycolysis. यहाँ पे देखो सारी चीजें मैंने दे रखी है, समराइज कर रखा है। Glycolysis is also regulated by the hormones glucagon, epinephrine, and insulin, and by the change in the gene expression of the several glycolytic enzyme. Hexokinase inhibited by the glucose 6 phosphate. I have told you. Phosphofructose kinase 1 है अगर, तो उसको इनहिबिट करने वाला कौन है, एडीपी, सिट्रेट और H+ आयंस, ठीक है। एक्टिवेटर कौन है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, एएमपी फ्रक्टोज 6 बिसफॉस्फेट। अगर पायरुवेट काइनेज है तो उसका इनहिबिटर कौन है, एटीपी एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक्टिवेटर कौन है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड एएमपी। थैंक यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट glycolysis pathways as well as the regulation of glycolysis. Whatever your queries, please do in comment box. I will try to give the answer, and please hit like button and subscribe my channel to upcoming videos. Thank you so much guys, thank you so much.